address that first. Second is to be able to create jobs for young people. Young people have voted in large numbers in Rajasthan and other states. 65 lakh first-time voters in Rajasthan have cast their vote, and a majority of them have cast it for the Congress party. Therefore, for young people to find new avenues for job creation will be one of our top priorities. But I think whatever we've committed in our manifesto, that will be implemented in toto. So what do you think is the MLAs, given that you have been at the helm for several past years, want you to be the next chief minister? Will there See, whatever the MLAs have to say, they will say it today in the meeting. And the final decision is left to the Congress president and the party, along with consultations with other leaders. We will take a call today. So please hold your breath. This is a routine exercise, happens every 5 years. And today, once the meeting is finished, we will announce the leadership issue today. So all of you are waiting for all these days and months and weeks will end. We will make the formal announcement, whatever the Congress party decides this evening. So this evening itself the decision will be. Sorry? हाँ नहीं, मुझे लगता है कि अगला चुनौती हमारी लोकसभा के चुनाव की है। अब 3 राज्यों में जब सरकार कांग्रेस की बनी है और जो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, जहाँ द्विपक्षीय मुकाबला हर बार होता है, वहाँ परास्त किया है, पराजय दी है भाजपा को बहुत शक्तिशाली पार्टी मानती थी, तो उनका सारा प्रबंधन, उनके बूथ विस्तारक और नाना प्रकार के जो वो डींगे हाँकते थे, वो सब धराशायी हो गया। और ये जनता ऐसी है जो बड़े बड़ों को मजा चखाती है, तो जितना घमंड अहंकार गुरूर भाजपा को था वो सब चकनाचूर हुआ है। लेकिन ये जीत जनता की जीत है, ये जीत आम हिंदुस्तानी की जीत है। और पूरे देश ने देखा है कि भाजपा की गलत नीति और गलत राजनीति के खिलाफ जनता मुखर होकर वोट डाल रही है। और कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाने का जो बीड़ा उठाया है, वो जनता के भरोसे उठाया है। See, you must understand, we were at 21 seats 5 years ago. Today we've crossed the halfway mark. BJP was 165. They've lost 95 MLAs. So it is a dramatic change in the numbers that the BJP and Congress had. We've got a clear, full mandate to form a majority government. I thank the people of Rajasthan for giving a clear verdict. It is not a hung assembly, it is a clear mandate in favor of the Congress party. And I think going forward, we are going to be able to implement all that we've committed, because the government is now formed with a lot of expectations from the people. So I'm very happy and content and satisfied and thankful to the people and our workers. This really victory is of the people who have for 5 years, who have sweated, who have bled, who have faced lathis, who have faced the aggression of the BJP government and the kind of draconian government जो चलाई थी, उसके खिलाफ लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको झेला है, उनका आक्रमण का सामना किया है। तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। और हमारे जाबाज जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने सरकार बनाई है। युवा सरकार भी बनाई है आपकी बार, आपने क्या करें, युवा सरकार भी बनाई है आपकी बार, बड़ी संख्या में युवा चेहरे जीते। ये राहुल जी ने हमेशा कहा है कि हमारी पार्टी में एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए, अनुभवी लोगों का और नौजवान लोगों का, क्योंकि देश नौजवान है। लेकिन जिन लोगों ने 10, 20, 30 साल संगठन या पार्टी को दिए हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने पिछले 5 सालों में इसको प्राथमिकता दी है कि जिन लोगों ने 30-40 साल तक पार्टी की सेवा करी है, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का लाभ मैं भी लूं एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, और उसका फायदा हमने देखा है। तो हमारे यहाँ एक अच्छा बैलेंस रहता है यूथ की एनर्जी का और अनुभवी लोगों का। इसलिए मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें भी सब लोग मिलकर आगे बात करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि किसानों से आपने बहुत बड़ा वायदा किया है 10 दिन में कर्ज माफी का, तो अब इसके इम्प्लीमेंट का टाइम शुरू हुआ। मनीष जी, जो हमने वादे किए हैं उनको पूरी तरह, और हम अकाउंटेबल हैं, हम सदन के अंदर मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। जैसा वसुंधरा जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम जनता के सामने जाएंगे, जवाबदेही रखेंगे और जो कमिटमेंट किया है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। I think any non-BJP political party that stands against the policies, BJP की जो पॉलिसीज हैं, संस्थानों को खत्म करने का, समाज में जहर घोलने का और राजनीति में एक नफरत का माहौल बनाने का, उन सब का, अब नोटबंदी है, जीएसटी है, आरबीआई का क्या हो रहा है, सीबीआई का क्या हो रहा है, ईडी का क्या हो रहा है, ये पूरे संस्थानों को अंदर खाने खोखला करने का काम भाजपा कर रही है। जो भी दल, जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति इन नीतियों के खिलाफ है और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी में की मदद करने के लिए आगे आता है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। मैं बहुत विधायकों से मिला हूं जो गैर कांग्रेसी हैं, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ हैं, और ऐसे बहुत से दल भी हैं। तो हम बहुमत के, तो यहाँ पर सचिन